Hi guys, today's topic is topic second, algebraic method for solving pair of linear equations. Okay, the graphical method is suitable for integer solution, but it cannot be suitable for non-integer solution since it may not be accurate as we need. So there are several algebraic methods which can be used for solving pair of linear equations. Some of the algebraic methods for solving a pair of linear equations: first is substitution, second is एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको बताते हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, पुराने लेक्चर में, कि अगर हम x की वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं रखते हैं तो y की वैल्यू अगर डेसिमल में आने लगी, फ्रैक्शन में आने लगी, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन देना ग्राफ पेपर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और थोड़ा सा एरर हुआ तो आपकी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगी। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगी तो ग्राफिकल मेथड का जो आपका एरर आता है उस एरर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया कि अलजेब्रिक मेथड से आप, यही हम आपको पहले बता रहे थे कि अगर कहीं ग्राफिकल मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना हो तो फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड, देन यू हैव टू लोकेट दैट सोल्यूशन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, फॉर ऐसा हम क्यों करेंगे? फॉर रिमूविंग द एरर। फर्स्ट मेथड इज substitution method. First method is substitution method. In this method, value of one variable can be found out in terms of the other variable from one of the given equations, and this value is substituted in other equation. Then we get an equation in one variable which can be solved easily. This method can be understood with the help of the following example. Right? अब इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल हेल्प से हम आपको और अच्छे समझाएंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज दिस: सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 8y equal 19 and 2x plus 11y equal 28 by substitution method and verify it. Okay, given equation, suppose first is this x plus 8y equal 19 and second is 2x plus 11y equal 28. Okay, then इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, x इक्वल कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, और देन x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। राइट, सेकेंड में पुट करोगे, देखो 2 इंटू एक्स इन प्लेस क्या रखोगे, x के इन प्लेस पे 19 माइनस 8y प्लस 11y, y ऐसे रहने दीजिए, तो अभी सब y के फॉर्म में आ जाएगा और कुछ कांस्टेंट, देन y इक्वल हमने इक्वेट किया है, दैट इज 2, then value of y you can put in the ever three equations right now. So by putting y equal to in equation this, here putting in equation third, so we find x equal 3, we find x equal 3. Okay, now take x equal 3 and y equal 2 is the required solution. अब आपको इसे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे? अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे? तो जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड थी उसमें हम पुट कर दें, दोनों इक्वेशन पुट कर देख लीजिए क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स इक्वल 3 एंड वाई इक्वल 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, एक्स प्लस 8y, तो एक्स इन प्लेस दैट इज 3 and y in place 8 to the 16 plus 19, and RHS is equation first is also 19, that's true. And also from second LHS is 2x plus 11y, in place of x is putting x equal 3, तो 2 into 3 that is 6, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो कितनी 2, तो 11 to 2 that is 22 plus 3 that is 28, and from equation second RHS is also 28, hence by putting x equal 3 and y equal 2 from both equation LHS equal RHS, hence this solution is verified. One remark is very important, here note is given, so please listen very carefully. Sometimes after substituting the value of one variable we get an equation with no variable. If resulting equation is true, then system equation has infinite solution, and but if equation is false, then system has no solution. Right? तो ये अभी जो रिमार्क दिया है, अभी एक प्रॉब्लम आएगा, इस प्रॉब्लम
किसी प्रॉब्लम हम आपको इस चीज़ को रिवाइज कराएंगे, क्योंकि ओरली ऐसे बताने से आपको समझ में कम आएगा, अभी प्रॉब्लम आएगी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, Romila went to stationery shop, okay, and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw a new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. Now look the solution. कास्ट ऑफ वन पेंसिल सपोज कर लिया क्या है एक्स रुपीज, एंड कास्ट ऑफ वन इरेजर सपोज कर लिया क्या वाई रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोमिला स्टेशनरी पे दुकान पे जाती है और क्या कहता है कि परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। तो अगर 1 पेंसिल कास्ट एक्स रुपीज है तो 2 पेंसिल की कास्ट कितनी हो जाएगी, दैट इज 2x, एंड 3 इरेजर दैट इज 3y। अगर 1 इरेजर कास्ट y रुपीज है तो 3 इरेजर क्या हो जाएगा 3y, और इक्वल किसके हो जाएगा, दिस इज द पेंसिल कास्ट एंड दिस इज द इरेजर कास्ट, और दोनों का सम कर दें दैट इज टोटल कास्ट। तो टोटल जो परचेज किया है रोमिला ने उसको कितने रुपये परचेज किया 9 रुपीज़ की। तो सम ऑफ मनी दिस एंड दिस इक्वल क्या हो जाएगा 9, जितना उसके पास पैसा था वो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ सिमिलरली अभी जैसे इसके जस्ट पहले कहा कि रोमिला जो है शॉप पे जाती है तो कितना खरीदती है कि रोमिला एंड सी आल्सो बार, उसकी जो फ्रेंड है वो क्या करती है 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। रोमिला एंड सी आल्सो बार 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। तो दोबारा क्या कर रही है, तो उसकी फ्रेंड जो 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर सेम काइंड खरीदती है कितने रुपये में 18 रुपीज़ में। तो 4 पेंसिल कास्ट 4x एंड 6 इरेजर का 6y, और टोटल उसके पास कितने रुपीज़ थी 18। तो इसको इक्वल कर देंगे 18 के। दिस इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन आई टोल्ड जस्ट 2x plus 3y equal 9. We can write here that is 2x plus 3y is equal 9. This is equation first. This is equation first. Okay, equation first is 2x plus 3y is equal 9 equation first, and second is 4x plus 6y equal 18. From equation first we can transform this equation in terms of y, that is x equal, this goes to r, 9 minus 3y divided by 2. This is the equation, and on substituting the value of x, इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन सेकंड जो है उसी में पुट कर दिया। इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट किया कि x इक्वल 9 माइनस 3y बाई 2। तो देखिए 4 इंटू एक्स, एक्स प्लस क्या कर ये हमने पहले पूरा पुट कर दिया, ये हो जाएगा प्लस 6y, 6y वाई वाई इक्वल 18। इसको सिंप्लीफाई करा, इसको सिंप्लीफाई किया 2 2 जा 4, तो सिंप्लीफाई आया तो हमें मिला क्या, दैट इज 18 इक्वल 18। क्या मिला 18 इक्वल 18, एंड दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल बट दिस इज द ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। अब हमने x की वैल्यू रखा सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें LHS इक्वल RHS तो मिल रहा है, बट हेयर इज नो वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। और यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ऊपर इक्वल इक्वेशन में, तो एवरी वैल्यू के लिए क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल। जब कोई यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो ये एवरी वेरिएबल वैल्यू के लिए ट्रू होगा, राइट। 10 we do not get a specific value of y as a solution, and so we cannot obtain the specific value of x। अब यहाँ x की वैल्यू रखा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में, तो LHS इक्वल RHS आ रहा है, और यहाँ पर y कोई वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल आना चाहिए था। जब y वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है तो y की वैल्यू कुछ भी रखो, ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा, 18 इक्वल 18 होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम आती क्यों है, हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया है कि जब क्या होंगे मोर देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्या होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन सिस्टम इक्वेशन क्या होगा डिपेंडेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम इसी तरीके से, देखिए आपको हम दिखाते हैं कि जो आपका 2x प्लस 3y इक्वल 9 है, अगर हम इसको क्या करिए, दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल 18,
तो सेकंड इक्वेशन को 2 से हम डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए जवाब हो जाएगा ना, 2 से कॉमन करो तो 2x + 3y = 9 हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड सेम हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो फर्स्ट और सेकंड सेम हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड जब सेम हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें कि एक ही इक्वेशन हो गई, दैट इज कि जब एक ही इक्वेशन हो जाएगी तो नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। हमने बताया when number of variable is more than the number of equation then this system equation has a dependent and also system is consistent and also you can say this system has a infinitely many solutions। डिपेंडेंट क्यों होता है, डिपेंडेंट इसलिए होता है बेटा कि अगर यहाँ पर सपोज करिए ये है y, x की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, जितनी x की वैल्यू चेंज उतनी y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी यूनिक सोल्यूशन नहीं रखेगा, यूनिक सोल्यूशन इक्वेशन नहीं रख सकता है, यानी x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। तो y की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x, x इज आर्बिट्रेरी, कोई एक ले लो, तो x हम चेंज करते जाएंगे y की डिफरेंट वैल्यू जाएगी। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि दिस सिस्टम, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट इज डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। Now, thus, hence from first or second have infinitely many solutions and we cannot find unique cost of the pencil and eraser। pencil eraser की unique cost नहीं find out कर सकते हैं। This situation has arisen because both the given equation this and this that is are same, वही जो हमने अभी आपको just बताया। Now, look this example, example 10 on page number 53। The pair of linear equation for where x plus 2y minus 4 equals 0, second equation 2x plus 4y minus 12 equals 0, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। तो हम क्या करें, बी एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब किसी एक इक्वेशन को एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सबसे फर्स्ट क्या कर दिया, एक्स को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ वाई में और देन इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो सेकंड इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट किया तो क्या मिला हमें, दिस -4 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर रखा किसमें, दिस में, तो एक्स इन प्लेस 4 - 2y + 4y - 12 = 0। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और ये जाएगा क्या, दैट इज -4y। तो -4y + 4y कैंसिल, +8 - 12 दैट इज -4 और दिस इज 0। तो ये ट्रू है ही नहीं है भाई, -4 = 0 क्या पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स होगा, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, सो द टू रेज विल नॉट क्रॉस ईच अदर। यानी दो इक्वेशन है कभी भी ये क्रॉस इस तरह से नहीं करें, यानी क्या होंगी, जो दोनों इक्वेशन दी दोनों क्या होंगे, दैट इज पैरेलल होंगी। जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड गिवन है, जो यहाँ फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दिया गया है, इसको क्या करेंगे, पैरेलल होंगी, राइट। और जो पैरेलल होंगी, और ऐसे भी आपको बता दें कि ऑब्जर्वेशन, जब भी किसी इक्वेशन में x की कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट अगर सेम प्रपोर्शंस में है, जैसे x यहाँ है और यहाँ कोफिशिएंट 1/2 जाए, इधर देखिए a1/a2 और b1/b2, तो ये जाए 1/2, ये b1/b2 हो गया और दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो 1/2 1/2 इक्वल है, बट c1/c2 डज नॉट, -4 - 12, तो जाए दैट इज 1/3, 1/2 = 1/2, ऐसे लिख के बताते हैं। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 बट डज नॉट इक्वल c1/c2, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/2 इक्वल 2/4 एंड इक्वल क्या होगा, दैट इज -4/-12। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इक्वल 1/2 एंड दिस डज नॉट इक्वल दैट इज 1/3, तो ये 1/3 की इक्वल नहीं होगा। तो ये कौन सी केस होती है, हमारी थर्ड केस होती है, दैट इज बोथ इक्वेशंस जो ग्राफ हो क्या होगा, पैरेलल होगा। जो पैरेलल होगा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ का मेथड हो गया। और यहाँ पर अभी बताया क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई या एक्स में इंटरचेंज कर लीजिए, देन ट्रांसफॉर्म करने के बाद किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है, हमने देखा कि LHS = RHS नहीं है, इट मीन्स कि ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स होने में देयर इज नो सोल्यूशन, दैट इज बोथ इक्वेशंस जो ग्राफ होंगे वो क्या, वो पैरेलल होंगे, ठीक ना। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 हम बात करते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है। x + y = 14 और सेकंड इक्वेशन क्या, x - y = 4, राइट।
तो इसको हम सॉल्व करने की करते क्या, अभी जैसे बताया, फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल फ्रॉम वन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देन पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन टू ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सॉल्व इट। अब जैसे देखो हमने क्या कहा कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 14, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल एक्स माइनस 14, वाई इक्वल एक्स माइनस 14। अब इसको हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन दिस है, सेकंड इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इक्वल 4 है, ठीक। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा x माइनस 4। अब इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, तो देखिए x है प्लस वाई, वाई इक्वल क्या, x माइनस 4 इक्वल 14, तो x ऐड हो जाएगा 2x इक्वल 14 प्लस 4 दैट इज 18, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल 9। अब x इक्वल अगर 9 हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 9 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट किया तो दैट इज y इक्वल x माइनस 4 है, इसे पुट कर दीजिए, तो x इक्वल 9, 9 माइनस 4 दैट इज y इक्वल 5, y इक्वल 5 है, x इक्वल 4, राइट। हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशन की। अब सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है, सिमिलरली आप सेकंड भी कर सकते सब्स्टिट्यूशन मेथड से, राइट। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमारी जो है वो है 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो इसको हम ट्रांसफार कर लेंगे, y इक्वल इसको उधर ले जाइए राइट साइड, वो माइनस वाई को राइट साइड ट्रांसफार्म करिए और इसको राइट हैंड वाला LHS में ट्रांसफॉर्म करिए, ठीक है। तो जब ट्रांसफेड होगा तो क्या होगा, 3x, ये 3x माइनस 3 and this goes to the r that is y को 3x माइनस 3 and second equation is that is 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, on substituting the value of y from equation first in equation second, तो इस substituting the value of y इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू किसमें रखना है, इस सेकंड में रखना है, तो सेकंड में क्या होगा, 9x माइनस 3y, तो 3y की वैल्यू क्या, y को 3x माइनस 3, y को क्या होगा 3x माइनस 3 और इक्वल 9 है। सिंप्लीफाई किया तो 9x माइनस 9x क्या हो रहा है 0, और ये हो जाएगा दैट इज 3 3 9, तो प्लस 9 इक्वल 9, हेंस 9 इक्वल 9। तो दिस इक्वेशन हैज नो वेरिएबल, अब इस इक्वेशन कोई वेरिएबल नहीं है, बट इट इज ट्रू, अगर एक्स इक्वल आर से ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, अगर इसमें एक्स है ही नहीं है तो एक्स की वैल्यू कुछ भी ज्यूम करो तो ये तो हमारा इक्वल ही रहेगा। सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये वही केस अभी हमने जस्ट बताया इसी वीडियो में कि जब क्या होगा कि इक्वेशंस और हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों सेम नहीं होंगे, दैट इज जब इक्वेशंस एक होगी और उससे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, कितने हैं यहाँ पर देखिए, इस पार्ट में आपका जो है x माइनस वाई इक्वल, इस पार्ट में सॉरी 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, राइट, और सेकंड क्या है 9x माइनस 3y इक्वल 9। अगर सेकंड इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये पहली वाली हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3, तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हमारा सेम हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन एक ही होगा, वेरिएबल कितने होंगे 2, जब वेरिएबल 2 होंगे इक्वेशन एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट, दैट इज y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा डिपेंडेंट। और कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसलिए सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन होता तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन तो भी सिस्टम इज कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट, नाउ लुक दिस, गिवन पेयर ऑफ linear equation is 0.2x plus 0.3y equal 1.3, second equation is 0.4x plus 0.5y equal 2.3, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब ये डेसिमल में दिया है तो क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये भी 1 प्लेस डेसिमल 1 प्लेस डेसिमल लगा हुआ है, तो 10 से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला हमें, दैट इज 2x plus 3y equal 13 and 4x plus 5y equal 23। नाउ प्रोसीड एज पार्ट फर्स्ट, तो जैसे हम पहले में से प्रोसीड किया वैसे ही प्रोसीड करेंगे। अब इक्वेशन हमारी 2x plus 3 13, 4x plus 5 equal 23, तो इसको सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
किसी एक इक्वेशन को y को इन टर्म्स ऑफ x रखिए और उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, तो हमें जो है क्या मिलेगा, x या y के टर्म्स में आ जाए टोटली, और x की वैल्यू जो भी या y की वैल्यू आए वो किसी दूसरी इक्वेशन रख दीजिए, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर क्या किया, x इक्वल टू एन वाई इक्वल 3। तो सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल 0। सो इस इक्वेशन से क्या कर लिया, y इक्वल क्या कर लिया, y इक्वल, इसको जरा आगे ले जाइए, देन √3x बाई √8 इक्वल y, y इक्वल क्या मिल जाएगा, y इक्वल हो जाएगा √3x अपॉन √8। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये देखिए √2x प्लस √3y, y की वैल्यू क्या है, √3x बान √8 इक्वल 0 है। अब यहाँ पर देखिए कि √2x प्लस 3 इंटू √3 3x अपॉन √8 इक्वल 0। तो इसको एलसीएम जो लोगे क्या होगा, √2x इंटू √8, राइट, प्लस 3x इक्वल 0। तो √2 इंटू √8 दैट इज अंडर √16 दैट इज 4। तो 4x प्लस 3x इक्वल 0। सो 4x प्लस 3x इक्वल 0 दैट इज 7x इक्वल 0, x इक्वल 0 क्या मिला, x इक्वल नेक्स्ट। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 0 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या थी, इक्वेशन सेकंड देखिए ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दैट इज क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या पुट कर दें, y इक्वल 0। तो y इक्वल जब 0 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल जैसे हम 0 पुट करेंगे, अब ये से बात ये क्या हो जाएगा, y इक्वल 0 हो जाएगा, राइट। और y इक्वल 0, ये पूरा 0 टर्म, ये टर्म इधर 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो x इक्वल 0/3, x इक्वल 0/3 दैट इज 0। तो y इक्वल 0 भी मिला और x इक्वल 0, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। आप नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, राइट। एंड सेकेंड इज 9x माइनस 10y इक्वल -1। ये दो इक्वेशन दिए, दिस एंड दिस। अब इसको ट्रांसफॉर्म किया, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, दैट इज 6, तो 6 हो जाएगा, और ये होगा 9x माइनस 10y इक्वल -2, राइट। और इसी को सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन फर्स्ट, इसी को हमने ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज 9x माइनस 10y इक्वल 6 टू क्या होगा -12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है। सेकंड इक्वेशन दिस है यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, दैट इज 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल 13/6, राइट। तो 6 इसका कैंसिल आउट, सेकंड इक्वेशन इज दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिस, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस। अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे अभी ऊपर बताया ऐसे ही बिल्कुल सिंपली सॉल्व करना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। Solve 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y equal -24, and then find the value of m for which y equal mx plus 3, for which y equal mx plus 3. Firstly, find the value of x and y from the given equation, and then put the value of x and y in y equal mx plus 3 to get the value of m. This is very important question, देखिए 2010 में पूछा भी गया है सीधे। So given pair of linear equation is 2x plus 3y equal 11, 2x plus 3y equal 11, and second is 2x minus 4y equal -24. From equation, from second क्या है, that is 4y इसको इधर RHS ले ट्रांसफर करिए और इस RHS को LHS में, तो 2x plus 24 equal 4y, so y equal 2x plus 24 upon 4, right. So y equal x plus 12 upon 2, this is the equation third, राइट। अब ये हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से हमने इसको, सेकंड इक्वेशन को चेंज कर लिया इनटू y, यानी y इक्वल x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, तो 2x प्लस 3y, y इक्वल क्या होता है, x प्लस 12 अपॉन 2, तो 2x प्लस 3 यानी x प्लस 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल 11। अब यहाँ क्या कर लीजिए, हमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2 जाए कितना, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 11 इंटू 2, तो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12 3 36 इक्वल 22, राइट। तो 4 प्लस 3 दैट इज 7x, 7x इक्वल
सो y की वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये पुट करने वाले 2x प्लस 3x प्लस 12/2 इक्वल 11, और ये क्या मिल जाएगा 4 एलसीएम लिया तो 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 11/2, सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल हो गया -2, x इक्वल आ गया -2। क्लियर? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल -2 इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। इक्वेशन थर्ड में हम x की वैल्यू ये पुट कर देंगे -2, तो -2 प्लस 12/2 दैट इज y इक्वल क्या मिलेगा, y इक्वल मिल जाएगा 5, y इक्वल 5 एंड x इक्वल -2, x इक्वल -2, y इक्वल 5। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए किसमें, y इक्वल mx प्लस 3 में, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल mx प्लस 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू 5 है, m इंटू -2 और प्लस 3, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या m इक्वल -1, तो m इक्वल -1, ये हमें फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, दो इक्वेशन सॉल्व करिए और m की वैल्यू निकालिए। तो दोनों वैल्यू को हमने क्या किया, सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाला, देन जो हमारी इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन थी, दैट इज y इक्वल mx प्लस 3, इसी में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दे तो m इक्वल वैल्यू -1। नाउ क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, इनको फाइंड करिए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट बार, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। अब इसमें क्या करें, लेट टू नंबर भी x एंड y, टू नंबर x एंड y, s क्या है ग्रेटर देन y, s क्या ग्रेटर देन y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब क्या रहा, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 है, तो जो लार्जर होगा हमने एज्यूम कर लिया x लार्जर है, तो x माइनस वाई क्या होगा दैट इज 26, लार्जर माइनस स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा, तो x लार्जर है तो लार्जर माइनस स्मॉलर दैट इज 26। और दूसरा पार्ट क्या कर रहा है इसमें कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, जो लार्जर होगा वही तो 3 टाइम्स अदर होगा ना, जैसे x यहाँ पर लार्जर है, तो जब x लार्जर है तो क्या होगा 3 टाइम्स द स्मॉलर, इसमें y क्या है स्मॉलर है, 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 26 एंड सेकंड इज x इक्वल 3y। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, अब ये सेकंड से क्या करें फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x इक्वल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया दैट इज 3y माइनस वाई इक्वल 26, सो y इक्वल 13, y इक्वल मिल गया 13। अब इस y इक्वल 13 को पुट कर दीजिए, अगेन किसको पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है दिस, तो y इक्वल 13 रखो, 13 3 दैट इज 39, x इक्वल 39, तो हमारे टू नंबर्स हो जाएंगे कौन सी 39 और 13, और दोनों डिफरेंस देखिए कितना रहा 26। काउंटर चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 39 माइनस 13 दैट इज 26, कितना हो जाएगा दैट इज 26। तो टू नंबर्स हमें मिल गया, कौन कौन से नंबर है 39 और 13, दोनों डिफरेंस कितना हो रहा है दैट इज 26, और वन नंबर इज 3 टाइम्स 39 क्या है 39 जो हमारा है ये 13 का 3 टाइम्स, देखो 13 3 जा 39 है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होता है टू एंगल्स हुज सम इज 180, एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय, जो लार्जर होगा यानी क्या कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा होगा, राइट। और सप्लीमेंट्री एंगल्स से दो कंडीशन मिल रहा है, लार्जर होगा स्मॉलर का 18 टाइम्स है, और सम ऑफ टू एंगल दैट इज सप्लीमेंट दैट इज 180। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, सपोज के लिए दोनों एंगल्स एक्स एंड वाई, अगर इसमें क्या ग्रेटर देन वाई है तो x प्लस वाई इक्वल 180, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल 180, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है दैट इज
जो हमारा लार्जर होगा इसमें क्या क्या x इज लार्जर, जब x लार्जर तो लार्जर क्या होगा, लार्जर होगा y प्लस 18, क्योंकि स्मॉल जब लार्जर है, लार्जर हमारा स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो लार्जर 18 ज़्यादा किससे, स्मॉलर से, तो लार्जर ज़्यादा होगा किधर ऐड करना पड़ेगा, जिधर स्मॉलर होगा तो स्मॉलर की तरफ 18 ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 18, हमारी सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल 180, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी है, सेकंड से क्या मिल गया, y इक्वल x माइनस 18, राइट, तो इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट हमारे x प्लस वाई इक्वल 180, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, y इक्वल जो x माइनस 18 है, y इक्वल x माइनस 18 को हम किसी इस इक्वेशन में रख देंगे, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखिए x है, तो ये x है, x देखिए x सही है, y की वैल्यू की x माइनस 18, तो y की वैल्यू x माइनस 18 हम यहाँ रखेंगे, और फिर इक्वल राइट हैंड है आपका 180, तो 180 है, 2x इक्वल 180 प्लस इधर आएगा 18 दैट इज 198, तो x इक्वल 99, तो x इक्वल 99, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 99 इन इक्वेशन थर्ड। अब ये x की वैल्यू 99 है, इज जस्ट एबव थर्ड इक्वेशन, हम किसी इक्वेशन थर्ड में या इसमें किसी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिए, तो x इक्वल 99 इसी में रख दिया, तो 99 में 18 दैट इज y इक्वल 81, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल्स, तो आपका y हो गया 81 एंड x हो जाएगा दैट इज 99, ठीक है। और दोनों का सम देख लीजिए, दोनों का सम आ रहा 180, और दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, 18 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि लार्जर इज स्मॉल से कितना 18 ज़्यादा, ये 18 ज़्यादा है, इसे काउंटर चेक कर सकते हो कि लार्जर जो है इससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, राइट। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया वीडियो दोबारा देखें, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर दीजिए, सभी नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। नाउ कोच, कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कोच ऑफ क्रिकेट, नाउ coach of cricket team buys 7 bats and 6 ball for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, right. Find the cost of each, find the cost of each bat and each ball, clear। now अब थर्ड का सोल्यूशन देखिए, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, तो सपोज कर लेंगे, हमने क्या सपोज किया कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट्स इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 बैट्स है एंड 3800 रुपीज में खरीदना, और 6 बॉल है, राइट, कितने हैं 7 बैट्स एंड 6 बॉल, तो जो 7 आपके कितने बैट्स, 1 बैट्स का कास्ट कितना x रुपीज़, तो 7 बैट्स कितना 7x, और कास्ट ऑफ 1 बॉल कितना y रुपीज़, तो 6 बॉल कितना होगा 6y, और टोटल कितना इसके पास है रुपीज़ 3800, तो 7x प्लस 6y को 3800, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, राइट। अब कास्ट ऑफ 3 बैट्स, तो कास्ट ऑफ 3 बैट्स, तो एक बैट की कास्ट है x रुपीज़, 3 बैट्स कितना 3x हो जाएगा, एक बॉल की रुपीज़ y है, तो 5 बॉल कितना हो जाएगा 5y, तो 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल 1750 रुपीज़, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि इस दोनों में से किसी एक को इन टर्म्स ऑफ x में हम y को एक्सप्रेस कर लेंगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख देंगे, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, देन x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50, hence cost of 1 bat is 500 and cost of 1 ball is 50 rupees. Now fourth part, the taxi charges in the city consist of the fixed charges together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer, right। अब हमें कुछ फिक्स चार्ज क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है, एक मिनिमम चार्ज जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर जो चार्ज जोड़ा जाए, दो चार्ज जोड़ करके, ठीक है, निकालना देखना अलग क्या है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे
फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 25। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर कोई पर्सन जाता है तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस करने में उसे ट्रैवलिंग करने में कितना पैसा पे करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक आपका फिक्स चार्ज है, क्या है, एक फिक्स चार्ज है, और टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, राइट। और जो डिस्टेंस कवर्ड उसका अलग चार्ज, एक फिक्स चार्ज है, एक डिस्टेंस कवर्ड चार्ज। तो फॉर डिस्टेंस 10, अगर 10 किलोमीटर जाता है तो चार्जेस पेड इज 100। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो टोटल चार्ज कितना है, 105 रुपीज़। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, राइट, 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज दिस। अगर 10 किलोमीटर जाता है तो पैसा कितना टोटल पे करता है, 105 रुपीज़। और जो नेक्स्ट 15 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करता है, 155 रुपीज़, राइट। तो अब इसमें कह रहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है, ये दो निकालना है। और सेकंड पार्ट क्या है कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई तो बताए इसके लिए वो कितना पैसा पे करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज क्या है, एक्स रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है, वाई। तो फिक्स चार्ज आपका एक्स रुपीज है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वाई रुपीज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो जब 10 किलोमीटर जाता है, कितना, 10 किलोमीटर, तो कितना रुपीज़ पे करता है, 105। तो आपका फिक्स चार्ज है जो लगेगा ही लगेगा वो एक्स रुपीज़ है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना, वाई रुपीज़ है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का अगर आपका वाई रुपीज़, 10 किलोमीटर कितना, 10 इंटू वाई हो जाएगा। तो ये फिक्स चार्ज है और ये ट्रैवलिंग चार्ज है। कुल मिलाकर चार्ज कितना हो जाएगा, 105 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन है कि फिक्स चार्ज आपका एक्स रहेगा ही, और जो 15 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करता है, 155 रुपीज़। तो 1 किलोमीटर की कास्ट अगर आपका चार्ज पर किलोमीटर आपका वाई रुपीज़ है, चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 15 वाई प्लस एक्स। तो ये किसकी इक्वल होगा, दैट इज 155। इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करिए तो हमें क्या मिला, x इक्वल 5 एंड y इक्वल 10, राइट। हेंस ये आपको पहला पार्ट यही था कि आपका जो फिक्स चार्ज आपका 5 हो जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो 10 रुपीज़ हो जाएंगे, राइट। अब आपको ये बताना है 25 किलोमीटर अगर चलता है वो तो उसका ट्रेवलिंग चार्ज कितना लगेगा। तो फिक्स चार्ज दिस, राइट, और किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज़ हो जाएगा। नाउ अमाउंट टू पेड फॉर ट्रैवलिंग 25। अब आपको बताना है कि 25 किलोमीटर जब चलता है, ट्रैवलिंग करता है, तो कितना चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज आपका है 5 रुपीज़, दैट इज एक्स। तो फिक्स चार्ज आपका क्या हो गया, 5 रुपीज़, और 25 किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज़। तो पर किलोमीटर चार्ज अगर 10 रुपीज़ है तो 25 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, राइट, 25 इंटू 10। तो ये फिक्स चार्ज और प्लस ये जो आपका पर किलोमीटर चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ट्रैवलिंग चार्ज निकलेगा, दैट इज 255। हेंस अमाउंट पेड बाय द पर्सन फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, दैट इज 255 rupees. If fraction becomes 9 by 11, fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to the both, if 2 is added to both the numerator and the denominator, right. if fraction becomes 9 by 11, ये कब 9 by 11 होगा, जब क्या होगा, 2 is added to both the numerator and, हमको ये मान लेंगे फ्रैक्शन x by y, x में 2 और y में 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 by 11। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर हम x by y फ्रैक्शंस में 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स 5 by 6। फाइंड द फ्रैक्शन। नाउ फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन देखिए, लेट द फ्रैक्शन बी x by y, राइट। कंडीशन फर्स्ट क्या कर रहा है, अगर इसमें हमें 2 ऐड कर दिए, क्या कर दिया, 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम x यानी न्यूमरेटर में 2 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो वो फ्रैक्शन क्या हो रहा है, दैट इज 9 by 11। तो ये क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। कंडीशन सेकेंड, इफ 3 इज एडेड, अगर 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 भी ऐड करें तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा x by y था, 3 इसमें ऐड किया न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5 by 6। तो 3 ऐड करने के बाद इस फ्रैक्शन में 3 ऐड किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 5 by 6।
then after cross multiplication and rearranging the term we find the equation second, that is 6x minus 5y plus 3 क्या मिलेगा 6x minus 5y plus 3 इक्वल 0। तो आपका देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका ये हो गया 6x minus 5y plus 3 इक्वल 0। तो 5y यहाँ से क्या हो जाएगा 6x plus 3 दैट इज y इक्वल क्या हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 6x plus 3 upon 5। तो on substituting the values of y from equation third in first, तो थर्ड की वैल्यू ये फर्स्ट में आप रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी कि 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। 11x है, y की वैल्यू क्या रख दिया 9, ये आपको देखिए यहाँ पर 9 है 9y, तो y की वैल्यू है आपकी 6x प्लस 3 बाई 5 और प्लस क्या है 4 इक्वल 0। तो अब देखिए कि इसको सिंप्लीफाई जो हम करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्या किया क्रॉस, यहाँ पर देखिए ये y की वैल्यू हमने इसमें रख दिया। तो 11 माइनस 9 दिस प्लस 4 इक्वल 0 और इसको हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको क्या किया एलसीएम यहाँ से लिया, तो 55x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3 प्लस 20 इक्वल 0। तो सिम्प्लीफाई किया क्या मैंने x इक्वल 4 x इक्वल 7 सॉरी x इक्वल क्या मिल गया 7 x इक्वल 7। इस x को इक्वल 7 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया। तो किसी इक्वेशन पुट करने के बाद सपोज कर लीजिए हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, जो हमारा इक्वेशन था वो किसी इक्वेशन रख दीजिए, हम थर्ड में ही रख दे रहे हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल x इक्वल 7 रख दो। तो x इक्वल 7 पुट करो तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा दैट इज 42 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या मिल जाएगा दैट इज 5y है ना। तो 5y इक्वल 43 प्लस 3 दैट इज 42 प्लस 3 दैट इज 45, ये 45 हो जाएगा। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 9, y इक्वल 9। तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या था, जो हमारा फ्रैक्शन था वो था x बाई वाई, फ्रैक्शन x बाई वाई था। x हमने निकाला अभी जस्ट, x क्या निकाला है x निकाला 7, x 7 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा दैट इज 9। तो x बाई वाई दैट इज 7 बाई 9। 6th part. Next question is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years, first of 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? तो इसमें जैकोब और उसका जो है सन है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हम एज्यूम कर लेंगे जैकोब की एज कुछ और उसके बेटे की कुछ एज हम सपोज कर लेंगे। देखिए नाउ लेट x इन ईयर्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब सन यानी जैकोब के बेटे की एज जो हो क्या x ईयर एंड y ईयर्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब की एज आपका y ईयर्स है और जैकोब के सन का जो ईयर है वो x ईयर है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर हैंस यानी 5 ईयर के बाद, ठीक है। तो 5 ईयर के बाद में जैकोब सन का एज हो जाएगा तो y प्लस 5 और जैकोब का एज क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि जैकोब का जो सन का एज है वो x प्लस 5 हो जाएगा और जैकोब का एज क्या हो जाएगा y प्लस 5। तो आफ्टर 5 ईयर जो कंडीशन है उसमें ये कह रहा है कि जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब की एज जो होती है, जैकोब की एज जो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हिज सन। तो देखिए जैकोब की एज जो है दैट इज y प्लस 5, तो y प्लस 5 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 5, राइट। जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, कब हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर। तो ये कंडीशन मिल जाएगी। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे y प्लस 5 इक्वल 3x प्लस 15। तो सिम्प्लीफाई किया दैट इज 3x माइनस वाई और प्लस 10 इक्वल 0। इक्वेशन आपकी ये फर्स्ट हो जाएगी। 5 ईयर्स, अब इसमें ये कह रहा है कि जो सेकेंड पार्ट है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मीन्स कि 5 साल पहले। तो जैकोब एज क्या हो जाता है y माइनस 5, राइट।
और जैकोब सन्स एज क्या हो जाएगा, देखिए 5 ईयर बिफोर जैकोब सन्स एज 3x तो x माइनस 5 और जैकोब की एज y थी तो 5 ईयर बिफोर यानी y माइनस 5 ये हो जाएगा। अब इसमें जो सेकंड कंडीशन है कह रहा है कि जैकोब 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब का एज जो है क्या वो 7 टाइम अपने पुत्र का कितना हो जाएगा, जैकोब का जो एज है उसके पुत्र से कितना हो जाएगा, दैट इज 7 टाइम्स। ये कब होगा, 5 वर्ष क्या पहले यानी 5 ईयर्स बिफोर जो होगा जैकोब की एज क्या उसके पुत्र की एज से 7 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या बनाया हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकोब की एज क्या है y माइनस 5, तो जैकोब की एज हो जाएगी y माइनस 5, ये कब होगा 5 ईयर्स एगो। और जो उसके सन्स का एज क्या होगा x माइनस 5, तो जैकोब का जो जो जैकोब है उसका एज जो होगा उसके पुत्र का कितना गुना हो जाएगा यानी 7 टाइम्स। तो जो जैकोब है उसका एज हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। ये कब होगा 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर बिफोर। इसको सिंप्लीफाई किया तो 7x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल 0 इक्वेशन आपकी सेकंड मिल गई और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है 3x, जो फर्स्ट हमारी है दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0 और जो हमारे नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज 7x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल 0, राइट। अब इसमें क्या किया y इक्वल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या होगी दैट इज y इक्वल हो जाएगा y इसलिए y इक्वल 3x प्लस 10, तो y इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 10, राइट। अब इसको आंसर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 3x प्लस 10 इक्वेशन सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन सेकंड क्या दैट इज 7x ये हमारी इक्वेशन सेकंड है 7x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल 0। इसमें सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू क्या कर दीजिए, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 7x, ठीक है, माइनस वाई जो है क्या 3x प्लस 10, तो ये हो जाएगा दिस माइनस 30 इज इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई किया x इक्वल 10। तो ऑन पुटिंग x इक्वल 10 इन इक्वेशन सेकेंड या थर्ड किसी में रख दीजिए, ठीक है। जो x की वैल्यू आई हमें x की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए सेकेंड या थर्ड में, जैसे यहाँ रख दिया थर्ड में, तो थर्ड में x इक्वल आप 10 रखोगे तो 10 3 जा गया दैट इज 30 प्लस 10 दैट इज क्या हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 40। Hence the present age of Jacob and his son are respectively 40 and 10। तो ये आपका y था, y आपका क्या जैकोब की एज और उसके पुत्र की एज क्या थी दैट इज x। तो इसकी एज आपका जैकोब की एज होगी 40 ईयर और जैकोब के बच्चे की एज क्या होगा दैट इज 10 ईयर्स। तो ये 40 कामा 10 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा स्पीड में बोल गए होंगे, लेकिन आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, उसकी स्पीड जो है ऑटोमेटिक आपको जब स्लो चलेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हमारी थोड़ी बोलने की स्पीड है, हम इस पर ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। और जो है हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।